नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ। अच्छा हम ये लिक्विड ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਨਵਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਸ ਹੈ। ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਫਟਾਫਟ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਗੈਸਸ। ਜਿੰਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੈਸਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਅਗੇਨ ਉਹੀ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। हाँ, जो ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥੀਸ ਆਰ ਸਲਾਈਟਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਾਈਟਲੀ ਸੋਲੂਬਲ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਟਰ 'ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਹੈ ਉਹ ਮੋਨੋਐਟੋਮਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਨੋਐਟੋਮਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ H2O, है ना। H ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, O ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ डाइपोल है। बट जो हीलियम है वो एक डाइपोल नहीं है, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इस दे विच कोई डाइपोल प्रेजेंट नहीं है। बट जो अगर तुसी इसमें देखो ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब की होता है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हर तरफ इक्वली सराउंडेड है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये बहुत सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। बट ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਸ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਜੋ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਮੈਟਰੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ठीक है। तो इसकी सारी सिमेट्री जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी, सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो एक साइड पे शिफ्ट हो गया, मतलब एक तरीके नाल ऑक्सीजन ने सारे इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ दूसरी साइड ਤੇ रिपेल करता। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਆਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹ इस पॉजिटिव पार्ट ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਡਾਈਪੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਹੀਲੀਅਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਨੇ ਡਾਈਪੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਟਰ ਨੇ ਡਾਈਪੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੀਲੀਅਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਾਈਪੋਲ। ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਾਈਪੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਾਈਪੋਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਈਪੋਲ ਇੰਡਿਊਸਡ डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल मींस कि जो परमानेंट डाइपोल है, इंड्यूस्ड डाइपोल जो कि बनाया गया है। तो इन्हां दोनों दे विच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस ने, दे आर नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इन्हां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही जो ये मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे च मिक्स हो सके है, इस करके नोबल गैसेस जो है वो थोड़ा बहुत वाटर दे विच डिसोल्व हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज इन्हां च कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं है जो नॉर्मली आप वाटर दे विच सोल्यूबल कंपाउंड्स दी देखते हैं। ठीक है, तो यह एक अलग टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिस कारण ये वाटर दे विच थोड़ा बहुत सोल्यूबल है। हाँ जी, हुण आपां नैक्सट प्रोसीड करते हैं ऑन द कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस है ना। तो नोबल गैसेस दे विच अगर आपां गल करिए अप टू डाउन जांदे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो सब तो ज्यादा जो रिएक्टिव होएगा वो लास्ट वाला एलिमेंट होएगा। तो लास्ट ते है रेडोन। रेडोन में तुहानूं क्या रेडियो एक्टिव है, तो उसकी आपां ज्यादा स्टडी नहीं है ना। तो उस तो ऊपर थोड़ा जिहा आंदा ज़ीनोन। तो एक तरीके नाल नोबल गैसेस च लास्ट ते ज़ीनोन एक इहो जिहा एलिमेंट है जिसकी स्टडी की जा सकती है, बिकॉज ज़ीनोन की आयनाइजेशन एनर्जी बाकी नोबल जो गैसेस है उन्हां दे कंपैरेटिवली लो है। तो ज़ीनोन की रिएक्शंस कराना ईजी है एज कंपेयर टू अदर नोबल गैसेस है ना। तो हुण ज़ीनोन दे उत्ते काफी रिसर्च की गई है, बहुत सारे कंपाउंड्स जो है ज़ीनोन दे एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखते हैं कि करके सारे कंपाउंड्स जो ज़ीनोन दे स्टडी करने हैं। तो पहला आप देखिए भी जो बाकी दे नोबल गैसेस है उन्हां दी स्टडी डिफिकल्ट क्यों है, उन्हां दे कंपाउंड्स जो है ईजीली क्यों नहीं बनते। तो रीजनस तुहाडे सामने है। पहला है हाई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की गल करिए, जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये रिएक्शन किवें करनगे है ना, बहुत मुश्किल है इन्हां दी रिएक्शंस कराना। ऑक्टेट फुली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्हां दी फुली फिल्ड है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, इनर्ट है, इससे करके इन्हां दी डिस्कवरी भी बहुत लेट हुई है। बाकी एलिमेंट्स की डिस्कवरी बहुत जल्दी हो गई सी, बट इन्हां दी जो डिस्कवरी है बहुत लेट हुई है। ठीक है, तो हुण आपां देखिए जो इन्हां दे कंपाउंड सी वो किवें डिस्कवर होए। तो जो सब तो पहला कंपाउंड सीगा डिस्कवर होया वो ज़ीनोन दा डिस्कवर होया सीगा। ठीक है, नील बार्टलेट जो है उन्होंने डिस्कवरी करी सी इस ज़ीनोन दे कंपाउंड दी। फर्स्ट कंपाउंड जो ज़ीनोन दा बनिया सीगा तो नील बार्टलेट ने वो बनाया सी। तो हुण वो किवें बनिया सी, एक्चुअली होया की सीगा, जो नील बार्टलेट सी वो ऑक्सीजन दी रिएक्शंस करा रहा सी। ऑक्सीजन दी जो रिएक्शंस करियां सी तां उसने की करिया, ऑक्सीजन नू हेक्साफ्लोरोप्लैटिनम नाल जो रिएक्शन कराई। तां जदों ये रिएक्शन हुई तां एक कंपाउंड बनया O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। तो एक कंपाउंड बनया अपने कोले। ठीक है, तो इस कंपाउंड दे विच की होया, जो PTF6 है गैसेस फॉर्म दे विच है। तो गैसेस फॉर्म दा जो ये PTF6 कंपाउंड है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इवन ऑक्सीजन नू ये ऑक्सीडाइज कर दिंदा है ना। तो ऑक्सीजन दी ऑक्सीडेशन होगी, तो ऑक्सीडेशन होगी मींस के ऑक्सीजन का हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इट मींस के ऑक्सीजन दे इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर केड़ा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो है PTF6 सी, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। तो हुण नील बार्टलेट दे माइंड दे विच की स्ट्राइक करया कि जो ऑक्सीजन है ते जो ज़ीनोन है, दोनों दे विच काफी सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटीज की है, देखो ऑक्सीजन ते ज़ीनोन दा जो रेडियस है वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, 4 एंगस्ट्रॉम दे नियर अबाउट ही दोनों दा रेडियस है। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी है दोनों दी आयनाइजेशन एनर्जी। अगर दोनों दी आयनाइजेशन एनर्जी से कंपेयर करो, ऑलमोस्ट सेम है, 1170 किलो जूल एंड 1175 किलो जूल पर मोल। तो आयनाइजेशन एनर्जी ते रेडियस जो है इन्हां दोनों दा ऑलमोस्ट सेम है, इट मींस कि इन्हां दोनों दी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम होणगियां। तो यही गल जो तुसे माइंड च स्ट्राइक करी, तो उन्हें की करया, ऑक्सीजन दी जगह ते ज़ीनोन नाल इह रिएक्शन स्टार्ट करी।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਨੋਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ, ਜਿਨੋਨ ਨੂੰ PTF6 ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। जिनोन ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ जिनोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ जिनोन ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ PTF6 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਤੇ ਜੋ जिनोन ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਰਸਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ जिनोन ਦਾ ਉਹ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बहुत जो है रिसर्च स्टार्ट हो गई क्योंकि एक बार पता लग गया भी हाँ जिनोन भी जो है वो कंपाउंड्स बना सकता है, तो फिर और बहुत तरह के जिनोन के जो कंपाउंड्स है वो बनाए गए। ठीक है, तो हम आप करके जिनोन के बाकी जो कंपाउंड्स है उन्होंने स्टडी करते हैं। हाँ जी, हुण अगर आप कंपाउंड्स की गल करिए जिनोन के तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है XeF2, XeF4, XeF6। ठीक है, XeOF2, XeOF4, XeO3 ਤੇ XeO4। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ जिनोन ਦੇ ਜੋ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ +2 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ +4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ +6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ +8 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ जिनोन ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲੋਰੀਨ ਨਾਲ है ना। तो जिनोन के जो कंपाउंड्स ने वो किसी नाइट्रोजन नाल या हाइड्रोजन नाल किसी इस तरह के होर एलीमेंट नाल नहीं है, सिर्फ दो ही एलीमेंट्स है जो जिनोन के नाल बॉन्डिंग शो कर रहा है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाई जिनोन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ओनली, है ना। तो क्यों ऑक्सीजन ते फ्लोरीन नाल कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जिनोन जो है दैट इज ए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जिनोन एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये किसी नाल भी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, है ना। अगर एक हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नाल तुसी रिएक्शन करानी है तो उस दे लई एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपां नूं चाहीदा है। तो पीरियोडिक टेबल दे विच हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अपने कोल सिर्फ दो ही ने, ऑक्सीजन ते फ्लोरीन। फ्लोरीन सब तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस तो बाद ऑक्सीजन, इवन नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो जिनोन के नाल रिएक्ट कर सके। ठीक है, तो सिर्फ दो ही इस तरह के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अपने को प्रेजेंट है जो कि जिनोन वर्गे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नाल कंबाइन हो सकते हैं तो एक स्टेबल कंपाउंड बना सकते हैं। तो इस करके जिनोन दी जो जिन्ने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिन्ने भी कंपाउंड्स बनते हैं, दे आर विद ऑक्सीजन और विद फ्लोरीन। ठीक है, अच्छा एक चीज जो बाकी दे एलिमेंट्स है उन्हां दी भी ट्राई कराया गया सी, बाकियां दे भी कंपाउंड्स बनाने की कोशिश जरूर करी गई सी। इस तरीके दे भी जिवें जिनोन दे एग्जिस्ट करते हैं, हो सकता बाकियां दे भी करन, तां कुछ सक्सेसफुल मिली सी। जिवें क्रिप्टन है, क्रिप्टन दा एक कंपाउंड एग्जिस्ट करया सी KrF2। रेडोन है, रेडोन का भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर RnF2, बट मैं तुहानूं दस्सिया रेडोन जो है वो रेडियो एक्टिव एलीमेंट है तो इसकी ज्यादा स्टडी नहीं की जाती, है ना। तो रेडोन का जो कंपाउंड है इवन ये जस्ट आइडेंटिफाई ही होया, ठीक है, पता लग गया भी हाँ ये बनया हुआ है, बट इसनूं सैपरेट फॉर्म दे विच, प्योर फॉर्म दे विच मतलब सैपरेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो यह सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया भी हाँ ये बंद है, बट इसनूं मतलब एक्सट्रैक्ट करना वो हले तक पॉसिबल नहीं हो पाया। तो जो क्रिप्टन है, क्रिप्टन का भी एक कंपाउंड ही स्टेबल है, दैट इज KrF2। जिनोन दे जिस तरीके नाल इन्ने सारे कंपाउंड्स बने हैं, क्रिप्टन का होर कोई भी कंपाउंड नहीं है, सिर्फ एक ही कंपाउंड है, ओनली वन कंपाउंड, दैट इज KrF2। ठीक है, तो हुण आपां की करके इन्हां दी प्रैपरेशन स्टार्ट करिए। अच्छा, प्रैपरेशन आप इन्हां दी बाद विच करदे हां, प्रैपरेशन कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है। आप स्ट्रक्चर्स जो है वो नहीं करके हटे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स दियां, तो पहला आप स्ट्रक्चर्स कर लिए इन्हां सारे कंपाउंड्स दियां। ठीक है, तो हुण तुसीं स्ट्रक्चर्स कर भी रहे हो तो हुण नाल दी नाल ही भी हो जाणगीआं। तो सब तो पहला देखो जिवें XeF2 है, XeF2 दी आपां ने स्ट्रक्चर बनानी है तो किवें बनेगी, तो बिल्कुल सेम मैथडोलॉजी है अपनी जिवें आपां पहला हाइब्रिडाइजेशन करी सी, बिल्कुल उसी तरीके नाल करना है। जिनोन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी अगर आप गल करिए तो लास्ट एक फुली फिल्ड है S2sp6 है ना। तो हुण पहला आप जिनोन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। जिनोन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p6 1 2 3 4 5 6 है ना। तो हुण तुसीं देखो जिनोन दी अगर आप एक आर्बिट्रेरी डायग्राम बनाइए तो जिनोन दे नाल दो फ्लोरीन एटम्स अटैच है, फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है ना, तो फ्लोरीन दे सिंगल बॉन्ड्स तो आप बना देने हैं। तो हुण तुसीं देखो अगर आप जिनोन नूं देखिए तो जिनोन दे आपने दो बॉन्ड जो है वो बनाने हैं। अगर बॉन्ड्स बनाने हैं तो आपको पता है जिन्ने नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपने बनाने होंगे
ਉਹਨੇ ਹੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਬੌਂਡਸ ਬਣਾਣੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇਨ ਜ਼ੀਨੋਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜ਼ੀਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋਣ, ਬਟ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ d ऑर्बिटल्स ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ 5d ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਕੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 5d ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, p ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ d ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ, 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ F2 ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, लो जी एक फ्लोरीन इतने अटैच हो जाएगा, दूसरा इतने अटैच हो जाएगा। तो हम अपने को सारे फ्लोरीन एटम्स जो है वो अटैच हो गए। तो हम हाइब्रिडाइजेशन देखिए की बनती है, लोन पेयर्स जो है वो भी हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करनी है, जो है सिग्मा बॉन्ड्स है ये भी हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे, वेकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन की बन गई एस p ਦੇ ਤਿੰਨੇ ऑर्बिटल्स हो गए ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ d ਦਾ sp3d। ਤਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ sp3d। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰਿਆ ਇੰਟਰਹੈਲੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ sp3d ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ sp3d ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਗੋਨਲ ਬਾਈ ਪਿਰਾਮਿਡਲ। 1 2 3 4 5 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰਾਈਗੋਨਲ ਪਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ प्लेन, ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ੀਨੋਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ 1 2 3 ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ ਦਾ ਜੋ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ 120 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ, 120 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 2 3 पोजीशंस है अपने को, ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਵੀ 3 ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ 1 2 3, ठीक है। 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर्स 3 लोन पेयर्स, तीनों लोन पेयर से अरेंज हो गया। ਹੁਣ बचे फ्लोरीन, एक्सियल पोजीशंस है अपने को, दोनों पोजीशंस के ऊपर फ्लोरीन अटैच कर दो, ठीक है। तो अपने को एक लीनियर जो है वो मॉलिक्यूल बन गया। इसकी अगर तुम शेप चेक करो तो शेप ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ हैं, लोन पेयर्स जो है वो इग्नोर करो तो बिल्कुल एक लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ਜਿਓਮੈਟਰੀ तो जो स्ट्रक्चर ਤੇ शेप है ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। स्ट्रक्चर ਇਸ ਦੀ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है ਤੇ शेप ਕੀ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ, ठीक है। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ओके ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ XeF4 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਕੀ। XeF4 ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜ਼ੀਨੋਨ ਦੇ ਨਾਲ 1 2 3 4 ਫਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स जो है वो एक्साइट कर देंगे, ठीक है। 1 2 मैं हूं डायरेक्टली एक्साइटेशन कर रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਤਾਂ 1 2 3 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स एक्साइटेड स्टेट 'ਚ ਹੋ ਗਏ। अनपेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए अपने ਕੋਲੇ, 4 ही बॉन्ड्स बनाने हैं ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ XeF4। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन। तो चारे जो फ्लोरीन एटम्स है वो अरेंज हो गए, एडजस्ट हो गए। हुन हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, दिस इज sp3d2। हुन इस बारी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन अपने कोले बनी है। sp3d2 दी ज्योमेट्री कल चेक करो, कल वाले टेबल दे विच ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। तो ऑक्टाहेड्रल किवें अरेंज करोगे, जिनोन, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, एक्सियल लाइन, ठीक है। तो हुन इक्वेटोरियल प्लेन अगर इसका बॉन्ड एंगल नोट करो तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है इट मींस कि जो लोन पेयर्स है इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर नहीं लगा सकते, एक्सियल लाइन के ऊपर लगानी पैणगियां, है ना। तो कितने लोन पेयर्स है 1 2। तो दोनों लोन पेयर्स जो है वो तुसी
एक्सियल लाइन के ऊपर अरेंज करनी है तो जो बाकी दी पोजीशंस है वो फ्लोरीन ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो अपने को ज़ीनोन दी XeF4 जो है उसकी अपने को पूरी स्ट्रक्चर बन चुकी है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। अगर शेप की गल करो, लोन पेयर्स इग्नोर करो तो बिल्कुल एक स्क्वायर प्लेन बचेगा, तो इसकी शेप की होएगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अच्छा एक होर करते हैं आप हम केड़ा करिए, एक सपोज करो ये करते हैं आप XeO3 करते हैं, चलो ऑक्सीजन वाला एक लाइए। ठीक है, XeO3 तो ज़ीनोन, अच्छा ज़ीनोन नाल ऑक्सीजन अटैच करनी है, 1 2 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता डबल बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो हुण इस बारी आपाने ज़ीनोन दे टोटल 6 बॉन्ड्स बनाने हैं, है ना, हर एक ऑक्सीजन नाल 2-2 बॉन्ड बनाने हैं, 2 4 6 टोटल 6 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो इनदे विच अगर तुसीं ध्यान नाल देखो 3 तो सिग्मा बॉन्ड्स है, बाकी दे 3 जो है वो पाई बॉन्ड्स ने। ठीक है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई होता है, तो 3 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स अपने को हो गए। बट आपाने टोटल 6 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो हम 6 बॉन्ड्स बनाने के लिए अपन की करना पड़ेगा, वी नीड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं की करे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट करते, 3 इलेक्ट्रॉन्स पी दे शिफ्ट करते डी दे विच। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने कोले। हुण आपां की करना है नेक्स्ट स्टेप दे विच इस दे नाल ऑक्सीजन्स अटैच करने हैं 3 ऑक्सीजन्स किवें अटैच करांगे, सब तो पहला तिन्हां दे सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स ते 3 पाई बॉन्ड बनाने है ना। पहला तुसीं की करो, पहला पाई बॉन्ड्स काउंट करो किन्ने बनाने हैं, तो आपां ने 1 2 3 पाई बॉन्ड्स बनाने हैं। इट मींस के पाई बॉन्ड जिन्ने बनाने हैं ना, तो ਉਹਦੇ ਲਈ लास्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। 3 पाई बॉन्ड बनाने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट पे छोड़ दो। ठीक है, लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई बॉन्ड वास्ते स्किप कर दो। ठीक है, तो हुण बाकी दे जो बचनगे वो सिग्मा बॉन्ड्स। तो हुण ऑक्सीजन का एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक इस ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक इस ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तिन्ने ऑक्सीजन दे जो सिग्मा बॉन्ड्स ने वो आपां ने बना है ना। हुण इन्हां तीनों ऑक्सीजन का एक एक पाई बॉन्ड भी बनाना है, तो हुण तुसीं अरेंज कर दो। तो ये पाई बॉन्ड वास्ते छड्डे लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन, एक इस ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड हो जाएगा, एक दूसरी ऑक्सीजन का हो जाएगा, ते थर्ड ऑक्सीजन का भी एक पाई बॉन्ड अपने को हो जाएगा, है ना। तो हुण इत्थे कुछ गल्लां दा ख्याल रखना है। पहली गल, पाई बॉन्ड जिन्ने बनाने हैं उहदे वास्ते इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ते छोड़ने हैं। दूसरी गल, जो पाई बॉन्ड तुसी बनाने हैं वो डॉटेड लाइन नाल बनाना है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो सॉलिड लाइन नाल बनाना है हमेशा। ठीक है, ते एक होर गल जो रखनी है याद कि पाई बॉन्ड्स जो है वो भी हाइब्रिडाइजेशन च पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन च पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर भी करती है, बट पाई बॉन्ड ते वेकेंट ऑर्बिटल्स ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन च पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो जिन्ने भी पाई ऑर्बिटल्स है वो अपने को हाइब्रिडाइजेशन च पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस करके इन्हां नूं लास्ट छोड़ देंगे। तो हुण किहड़े-किहड़े हाइब्रिडाइजेशन च पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एस दा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आ भी सिग्मा आ भी सिग्मा आ भी सिग्मा, तो पी दे भी तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि तीनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। इन केस मान लो ये भी कोई पाई बॉन्ड बना रहा होंगे तो फिर उसमें भी आपको छोड़ना पैंदा। ठीक है, चलो तो हुण अपने को हाइब्रिडाइजेशन की बन गई sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 की होंदी है टेट्राहेड्रल। तो हुण टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपने बनानी है। टेट्राहेड्रल कुछ इस टाइप की होंदी है, दिस इज टेट्राहेड्रल, सेंटर दे विच ज़ीनोन आ गया, 3 ऑक्सीजन एटम्स आपने लगाने हैं, कितने मर्जी तुसी लगाओ, 1 2 3 ऑक्सीजन लगाते हैं एक लोन पेयर है, चौथी पोजीशन जो है वो लोन पेयर पे हो जाएगी, इतने कोई एक्सियल इक्वेटोरियल तो है नहीं, कितने मर्जी कुछ भी लगा सकते हैं। बाकी हुण ऑक्सीजन के सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, बाकी दे 3 जो पाई बॉन्ड्स है वो भी तुसी अरेंज कर दो, 1 2 3, बाकी दे 3 पाई बॉन्ड्स भी आप ऑक्सीजन दे अरेंज करते, तो अपने को बन गया XeO3। तो इसकी जो ज्योमेट्री है दैट इज टेट्राहेड्रल। अगर शेप देखनी है लोन पेयर हाइड करो तो बिल्कुल एक पिरामिड टाइप तो नजर आएगा, सो इसकी जो शेप है दैट इज पिरामिडल शेप। ठीक है, तो इस तरीके ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बाकी जिन्ने भी कंपाउंड्स है उन्हें सारे दी स्ट्रक्चर जो है वो बनानी है तो बना के मैंने सेंड करो। ठीक है, आलमोस्ट सारे दी जो पुराने जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स थी उन्होंने स्ट्रक्चर्स भेजती हैं, जिन्होंने नहीं भेजिया वो भी भेजो फटाफट, तो ये भी जो स्ट्रक्चर्स ने ये भी भेजो। तो इस गल की जरूर श्योरिटी लै लो कि एग्जाम्स के इन्होंने स्ट्रक्चर्स के एक क्वेश्चन एटलीस्ट आएगा ही आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ स्ट्रक्चर्स के ही आना है, तो इन्होंने स्ट्रक्चर्स को चंगी तरह डिटेल कर लो।